वी आर यूजिंग स्केल, हमें ये चीज स्केल से ही मिलती है, ठीक है, चाहे वो डीए है, एसए है, एमए है, आप उसको इस फॉर्मूला में फिट कर देना होता है। अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आइडेंटिफाई अर्ली, वी मैनेज अर्ली एंड वी विल मेक द चाइल्ड इंडिपेंडेंट। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है? हियरिंग या विजन इश्यूज है तो वी कैन अप्लाई। इज नॉट इक्वल टू आईक्यू। बच्चे के साथ डीक्यू, एसक्यू प्लस आईक्यू। पॉपुलेशन में से वी आर स्क्रीनिंग द चाइल्ड फ्रॉम द मेजर पॉपुलेशन कि इफ ही हैज और शी हैज a developmental issue or not. When the child is passed, we have to mark tick, and when the child is not doing, we have to cross. Saying till 3 months he did all the thing. इसका baby है लेकिन 3 months MA upon CA into 100. But DA के फॉर्म में developmental age, BSMS के फॉर्म में social age. ठीक है? Good morning everyone. We are glad to be here today. We are going to talk to you about which is a heart of early intervention centers, which is developmental screening test. Have you heard before developmental screening test? No idea? Yes, it is a screening test, as well as its name says that developmental screening test. So we have read before what is the milestone of developmental milestone. Have you studied? तो milestone क्या होते हैं? What are the domains of milestones? Exactly. So it assess all the developmental domains. Okay. So if you work with little ones, you will realize that early detection is very important. Why? As early the child is detected, better will be the improving. Very nice. Early detection, when we identify early, we manage early, and we will make the child independent early. So being a rehabilitation psychologist or rehabilitation professional, our motivation or our goal is to make the child independent in all domains. Okay? Now let's take a quick look how DST came into begin. ठीक है, तो it is developed in India by NIMH, National Institute of Mentally Handicapped. Okay, तो great contribution given by Bharat Raj in 1977. तो basically it is measuring mental development of the child. ठीक है, or from birth to 15 years. It has 88 items and it takes around 15 to 30 minutes. Okay, and it is semi-structured interview. What does it mean by semi-structured interview? In between the interview, according to convenience, you can ask them questions to have a better understanding of the case. Okay, very nice. Anyone else? Semi-structured interview क्या होता है? Like the questions that we are going to ask, they are not prepared like पहले से कोई ना fixed चीज नहीं होती. There are certain things that we need to ask, and other things that we see at the moment we can add them on. Okay. Okay, fine. Anyone else? It can be open-ended and closed-ended. For example, मैम ये जो इसमें items हैं वो तो हम पूछते हैं, इसके अलावा हम अपनी तरफ से कोई open-ended क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सेमी स्ट्रक्चर मीन्स, हमेशा मैंने बोला है कि मीनिंग देखो भी ना क्या है. सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू यानी ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू बेस्ड है, पहली चीज. सेकेंड इज कि सेमी स्ट्रक्चर यानी इंटरव्यू तो, लेकिन सेमी मीन्स आधा. ठीक है,
मतलब इंटरव्यू बेस्ड तो है लेकिन इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड है, यानी हम ये क्वेरीज जितनी चेकलिस्ट में हैं हम आज पूछेंगे, बट साइड बाय साइड मीन वाइल वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग द चाइल्ड एंड इफ नीडेड क्या करेंगे हम उसे, तो हम उसे करा के भी चीजें देखेंगे वेयर वी हैव टू सी द डाउट कि हमने पेरेंट्स से कुछ पूछा कि आपका बच्चा बैठता है कि नहीं, शी इज सेइंग कि हाँ वो बैठता है, बट हमें क्या कहना है, हमें लग रहा है डाउट कि वो अभी तक आया है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं बैठा है, बैठा तो है इंडिपेंडेंट नहीं बैठा है, तो हम क्या करेंगे उसको करा के भी देखेंगे, बैठा के भी देखेंगे कि इज ही इज सिटिंग और नॉट, ठीक है। Okay. And it is also used for assessing children who are non-cooperative. Non-cooperative means? Have you seen here any non-cooperative children till date? Yesterday we saw that the child was crying continuously. So we Exactly. तो non-cooperative children means who is not cooperating. ठीक है, कोऑपरेटिव मीन्स वो फजी है, चिड़चिड़ा है, स्टबबर्न है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट आई वांट टू ऐड हियर समथिंग कि ये टेस्ट वहाँ पे भी यूज किया जाता है जहाँ पे बच्चा नॉन वर्बल है या फिर हेयरिंग या विजन इश्यूज है, तो वी कैन अप्लाई दिस टेस्ट ऑल्सो। ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, ठीक है, व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ दिस टेस्ट, ठीक है, ग्रॉस मोटर लैंग्वेज, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सारे ये कवर करता है, ठीक है। तो इस स्केल के डोमेन में सारे डेवलपमेंटल ही एस्पेक्ट है। ओके, फैक्ट्स अबाउट डीएसटी। कैन समवन टेल इज डीक्यू इज इक्वल टू आईक्यू? One also want to add something? I believe that developmental quotient is an overall look at the child, as in आप उसके growth भी देखो, development भी देखो और cognitive aspect भी देखो. Whereas in IQ, we are simply looking at the problem solving abilities of the child. Exactly. So it is also written here. You can see this PPT. So what is intelligence? Intelligence is given, definition is given by Weschler in 1944. क्या था intelligence की definition? Who can read it loudly? Intelligence is the aggregate of global capacity to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his environment. ठीक है, तो दिस इज इंटेलिजेंस। तो हमारा इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस इज एग्रीगेट टू ग्लोबल कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट के साथ इफेक्टिवली हमें डील करना है और मैनेज करना है अपने आप को। तो हमारी इंटेलिजेंस क्या होती है बेसिकली, कि हम कितनी जल्दी किस इन्वायरमेंट में कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, ये सारी हमारी इंटेलिजेंस की बात है, ठीक है। नाउ डेवलपमेंटल क्वेश्चन इज नॉट ऑल, मैंने जानबूझ के इसे लगाया था, आई मार्क हियर दिस बिकॉज इट इज नॉट, ये नॉट ही है, नॉट एट ऑल व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय DQ IQ, ठीक है। तो DQ इज नॉट इक्वल टू IQ, ओके। न्यूमेरिकल वैल्यू इंडिकेटिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टू मैच्योरिटी, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट को हमारे मेजर करता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। DQ measures child development with correspond to the social norms. In other words, DQ correspond to the vast range of psychosocial competence. Thus, DQ and IQ are not the same. ठीक है ना, ठीक है, बट अदरवाइज नहीं, स्कोर्स इसके GST के हम IQ उस पे भी देखते हैं मॉनिटर पे, लेकिन इनका अपना एक मॉनिटर है IQ कैलकुलेशन। दैट्स व्हाई we say that DQ is almost equivalent to IQ, क्योंकि हम बच्चे का IQ कैसे मेजर करेंगे, बच्चे का IQ कैसे मेजर करेंगे? वो हमेशा ऐसे तो बिहेव नहीं करने लगेगा ना हमारी तरह, क्योंकि ही इज सो स्मॉल, इन्फेंट है, चाइल्ड है, तो उसकी हम डेवलपमेंटल एरिया से ही कैलकुलेट करते हैं IQ। दैट इज व्हाई वी समटाइम्स से DQ इज इक्विवेलेंट टू IQ।
but it is not equal. Okay, are you getting my point? मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे? ठीक है, तो IQ की तरह अगर we are doing VSMS every day, you are also doing VSMS every day. What you are calculating on VSMS? Social age. And इसमें क्या कर रहे हैं हम? डेवलपमेंटल. तो आइडियली हमें हर बच्चे के साथ DQ, SQ प्लस IQ 3 निकालने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे का क्या आ रहा है. ज्यादातर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैज ऑलमोस्ट सिमिलर scores on this on all 3 scales, almost similar. Sometimes it varies. What are the benefits of this scale? It is quick, easy to use, पेपर पेंसिल टेस्ट, इंटरव्यू बेस्ड टेस्ट. और क्या हो सकता है इसमें? क्या क्या मैंने और लिखा है? अच्छा, ये स्क्रीन आउट कर लेता है. अच्छा, somebody told us कि स्क्रीनिंग टेस्ट है. What does it mean by screening test? Ma'am, from a population to assess how many people are there who are actually having some problem. ओके, ठीक है. स्क्रीन आउट करना कि मेन मेजर पॉपुलेशन में से वी आर स्क्रीनिंग द चाइल्ड फ्रॉम द मेजर पॉपुलेशन कि इफ ही हैज और शी हैज अ डेवलपमेंटल इशू और नॉट. इट ओनली टेल्स रिस्क ऑफ द डेवलपमेंटल डिले. ठीक है, जब रिस्क हम पकड़ते हैं देन वी हैव टू अप्लाई द डायग्नोस्टिक टूल. व्हाट डू यू थिंक हु कैन एडमिनिस्टर दिस टेस्ट? Psychologists who have done a course in rehab. Obviously, and Therapists, like हाँ, he or she can also apply. Okay. Pediatricians, psychologists, special educator, nurses, community health workers, and OT can also do it, as Bibha said. Okay, so why all the people can do this test? overall for checking overall this. Beta, obviously it's a screening test. Screening test can be used by other health professionals because it's only screen out the from the population. Okay, इस वजह से, क्योंकि अगर ये लोग जो है स्क्रीन कर रहे हैं ओनली, उसके बाद ये हमारे पास लाएंगे कि आप डायग्नोस्टिक टूल करो कि ये है या नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे कैन यूज्ड. How do DST look like? This is original DST. Okay. Oh, heart of my PPT. I think you are waiting for this. Okay. So administration is very important of every test. So before administration, you have to focus some prerequisite skills or settings. What are they? Should be done in a place free from distraction. ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. अक्सर हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है उसी के साथ करना शुरू कर देते हैं, इससे हमारा टेस्ट विल बी हैम्पर. ठीक है. और चाइल्ड शुडंट बी हंग्री, टायर्ड और इरिटेटेड एज वी सॉ यस्टरडे. क्या क्या था वो पेशेंट, कल का पेशेंट क्या था? नहीं, वो क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहा था? क्योंकि हम टेस्ट नहीं कर पाए ना उस पर. तो क्यों, क्या फीलिंग थी उसकी, क्या था? वो टायर्ड था, इरिटेटेड था, हंग्री था, क्या व्हाट डू यू फील? And then he got tired. तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि इसका जो टेस्ट होगा नेक्स्ट विजिट में होगा. तुम लोगों ने उसे वेट कराया, तब भी मैंने ये कहा था कि उसका टेस्ट हम बाद में करेंगे, क्योंकि शुडंट बी हंग्री, टायर्ड और इरिटेटेड. टेस्ट विल बी हैम्पर अगेन. ठीक है. प्लेफुल मूड में होना जरूरी है. ठीक. एक्वायर्ड टाइम टू मेक चाइल्ड एंड फैमिली कंफर्टेबल. कैरी अ डेवलपमेंटल किट. जो भी आप
किट है आपका डीएसटी का है, उसका आपको सारी चीजें मैनुअल, स्केल प्लस कुछ टॉयज भी आपको रखने होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द स्किल्स? Your skills feeds you actually. अगर if you don't have any skills, major skills like rapport building, observation or inquiry, if you don't have these skills you can't do any test, not only for DST, okay. तो आपको you have to make a rapport building first and you have this skill and you have to improve this skill, okay. Observation is very important. You have to observe the child and mother's answer behind the line, what she is saying or what is not saying, okay. And then inquiry is very important. Again I am telling कि inquiry is very important. Inquiry में क्या होता है, क्या होना चाहिए, किस तरह की inquiry होनी चाहिए? Usually parents will tell the joke will be usually high और वो सीधा अगर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसको नहीं बताएंगे, so it's our responsibility to take it. Yes. हाँ, तो you have the skill to dig out the correct answer from the parents or caregiver, okay. तो आपको क्या करना है, multiple time you can ask the question, क्योंकि in India we have language barriers, ठीक है, language और communication style are very different, so we have to inquire to the caregiver with different style according to the patient, ठीक है। आपके पास कोई भी मदर आ रही है, उसको आपने बोला कि आपका बच्चा खाना खा लेता है अपने आप, वो कह रही है हाँ खा लेता है, ठीक है, बट आपको देख के ये लग रहा है, ये ऑब्जर्वेशन इज कि बच्चा शायद नहीं खा पाएगा, तो आपको क्या पूछना है फिर, अगेन यू हैव टू इंक्वायर डिफरेंटली, कैसे आपका बच्चा कैसे खाता है, आप प्लेट में देते हो, खुद से ले लेता है, तो इस तरह के यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, देन यू विल गेट अ राइट आंसर एंड देन यू विल टेक केस हिस्ट्री. Case history, when you apply any test, you have to take a case history of the child. केस हिस्ट्री में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वैसे केस हिस्ट्री तो बहुत लंबी होती है, यू हैव टू टेक ऑल द थिंग, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बर्थ हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री और कंप्लेंट, ये तो होना ही होना है, ठीक है। वाई वी से कि कंप्लेंट होना है, डेवलपमेंटल डिले किस में हो रहा है? एक्चुअली कंप्लेन कैन टेल यू दैट चाइल्ड को हमें किस वे में डायग्नोसिस बनानी है, तो कंप्लेन एंड केस हिस्ट्री help us to make a proper diagnosis, okay. एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें क्या करना है, ठीक है। At the time of administration, you have to fill the identification data before you begin testing. क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा? जो हम केस हिस्ट्री की बातें कर रहे थे, केस हिस्ट्री, उसका नाम, एड्रेस और क्या क्या होता है, सेक्स और कंप्लेन, ड्यूरेशन, ठीक है, वो सारे उसकी आइडेंटिफिकेशन डाटा, क्या उसका DIC नंबर है, ऑल यू हैव टू फिल एंड शुड मेंटेन रैपो बिल्डिंग, जो हमने स्किल्स में बात कर चुके हैं। एंड द पेरेंट्स मस्ट टोल्ड दैट कि व्हाई आर यू डूइंग दिस टेस्ट ऑन देम, विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम हम ये चीज़ बताते नहीं हैं, लेकिन आइडियली वी हैव टू टेल द पेरेंट्स कि हम ये टेस्ट क्यों कर रहे हो और इससे क्या मेजर होगा और इससे आपको क्या फ़ायदा होना है, ओके, ठीक है। गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्लेफुल एक्टिविटी के साथ आपको करना है, ठीक। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है
ठीक, इसको जो है आपको कभी भी नहीं बोलना है कि जब आप while are you doing this test आपको मदर या फादर से ये नहीं कहता, अरे ये नहीं कर पा रहा आपका बच्चा, ये एज हो गई है इसकी, ठीक है, ये नहीं करना है। ये राइट और रॉन्ग आंसर कुछ भी नहीं बोलना है पेरेंट्स से। मटेरियल वही है, कॉमन टॉयज आप अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड आपको रखना है। नाउ कम टू केस, अब थोड़ा सा हम इसकी देखते हैं। तो इट इज अ रियल केस ऑफ DEIC। ओके, तो इसमें व्हाट आई फिल I have to tell ना, identification data we have to fill before the testing. This is, ठीक है। तो here I am showing for the confidentiality purpose we have to hide the name, DIC number. Why? It is very important कि confidential, being a psychologist we have to make a confidentiality, we have to maintain a confidentiality, ठीक है, किसी के भी without any written consent or information we can't show any name. Child has complained drooling can't stand. The child came with the complaint of drooling and can't stand, and birth history is full term normal delivery at home. Take birth cry delay by 2 hours, and there were no postnatal event were reported. Postnatal event क्या होता है? The child faces difficulties like oxygen level Hmm. or maybe special care. After delivery any complication can come under postnatal event, ठीक है, वो whatever कुछ भी है, वो NIC admission, NICU admission है, फिर और भी हो सकते हैं, many more. Okay, this is DST when we applied. Okay, तो हम now we are going to do this. Okay, so this is the scale. All you have scale na? Okay, try to tick what I am going to say you, ठीक है। तो there is what we are doing here, when the child is passed we have to mark tick, and when the child is not doing we have to cross. So that time the mother was saying till 3 months he did all the thing, ठीक है, तो you have to tick all. This is take, this is take, this. Have you marked it? Till 3 months. Okay, and again all are take till 6 months. And then 9 month again take all. Okay, and now come to 1 year. There is one cross and cross, ठीक है, 2 are cross. मम्मा दादा 3 words नहीं बोलता है बच्चा मेरा, ठीक है, तो वो बच्चा नहीं कर रहा था, that's why we cross the item. Okay, and चाहे stand alone well, उसकी कंप्लेन ही यही थी, ठीक है, तो ये क्रॉस था. And then again 2 vertic. And I come to 1.5 year, again 2 cross and 2 yes, cross cross yes yes. Then come to 2 years, again cross 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 cross. Have you seen that the child is 4 years 6 months and वो कहाँ तक ही नहीं कर पा रहा है, विजुअलाइजेशन हो रहा है ना, कहाँ तक नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक, वो इसके बाद बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, सारी चीजें क्रॉस क्रॉस क्रॉस. ओके, अब व्हाट अबाउट स्कोरिंग? तो हियर कम्स मैथमेटिक्स. यू हैव टू डू सम मैथ्स. ओके, तो मैथ्स में आपको क्या करना है, एक्चुअली इसकी स्कोरिंग होती है मंथ,
divided by, oh sorry, month divided by items, total items basically, into correct response. ठीक है, अब जो है आप लोग इसका सारे का आप लोग निकालो पहले, ठीक है, अपने आप जो मैंने फॉर्मूला बताया, यू हैव टू डू ऑन योर सेल्फ. को मंथ है, मंथ से डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो उसमें है, और उसके बाद क्या करना है, इनटू करेक्ट रेस्पॉन्स. यानी पहला वाला जो तुम्हारा है उसमें थ्री क्या है, मंथ्स है, तो 3 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आइटम कितने 7 है, डिवाइडेड बाय 7 इनटू करेक्ट रेस्पॉन्स के, क्योंकि सारे टिक हैं तो 3 आएगा, तो इक्वल टू 3. ऐसे ही आपको पूरा निकालना है. Have you done? Okay. क्या क्या आया है? Tell me. 3 months, 6 months, and 9. लेकिन जो 1 year में है कल 6 months आया. यहीं पे गड़बड़ी किया है तुम लोगों ने, यही मुझे बताना था. This is 3 months, okay? This is also 3 months. मुझे पता था आप लोग ये गलती करोगे, that's why I told you कि तुम लोग अपने आप करो. ये 3 months हो गया, ये 6 month का बेबी है, लेकिन 3 months यहाँ खत्म हो गया ना, ये 3 तो बच गया, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है. और यहाँ पे कितना डिफरेंस है 6 और 9 में, ये भी 3. यहाँ पे कितना डिफरेंस है 9 और 1 साल में 3 months, ठीक है. और यहाँ 1.5 साल में 6 month, यहाँ 2 साल में 6 month, उसके बाद अगेन 12 12 12 12. तो आपको इससे डिवाइड करना है, ठीक है. तो अब क्या करोगे, व्हाट यू हैव टू डू, 3/7 इंटू क्या है, 7 आइटम करेक्ट है, तो इफ ऑल करेक्ट बाय द चाइल्ड 3 आ गया, यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ है, देखो, ठीक है. फिर 3/6 इंटू 6 करेक्ट है, 6 आ गया 3. 3/4 इंटू 4 इक्वल टू कहाँ गया, ठीक है, ये आ गया. अब 3/4 इंटू 2 1.5, और यहाँ 6/4 इंटू 2, तो ये करेक्ट आंसर्स थे ना, दो हमारे नीचे में. तो ये टोटल अब इसका क्या है, टोटल इज 13.5, टोटल इज 13.5. तो व्हाट हैव यू गॉट फ्रॉम दिस स्केल, DA. तो ये जब हम सारे DA को ऐड कर देते हैं तो ये टोटल DA हमारे पास आ गया बच्चे का, तो ये क्या हो गया 13.5. एंड वी आर डूइंग VSMS में भी हम यही करते हैं, ठीक. अब क्या है, ठीक. अब डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जैसे तुम्हारी आ रही है, ठीक है, यू ऐड DA आ गया तुम्हारा, तो DA को कहाँ कैलकुलेट करते हैं, कैसे, VSMS में कैसे कैलकुलेट करते हैं, SQ कैसे निकालते हैं, DQ कैसे निकालते हैं, सबको IQ के फॉर्मूले में फिट करते हैं. वी हैव टू फिट इन ऑल द थिंग लाइक IQ फॉर्मूला, ठीक है. IQ फॉर्मूला क्या होता है, MA अपॉन CA इंटू 100. ये मेंटल एज होता है, इट इज मेंटल एज इन द IQ, बट DA के फॉर्म में डेवलपमेंटल एज, VSMS के फॉर्म में सोशल एज, ठीक है. और SA, MA एंड DA we will get from the test और बैटरी, ठीक है. कि जो भी स्केल, वॉट एवर वी आर यूजिंग स्केल, हमें ये चीज स्केल से ही मिलती है, ठीक है, चाहे वो DA है, SA है, MA है. अब उसको इस फॉर्मूला में फिट कर देना होता है, ठीक है.
तो 13.5 divided 4 years 6 months, तो we have to convert age into months. क्यों? Why we are doing this thing? That will be easy to look for the developmental milestones. Because we are getting this in the month. ठीक है, स्केल से हमें वो मंथ में ही मिल रहा है. यहाँ पे when you see the scale, ये क्या है? मंथ्स ही तो है सारे. ठीक है, तो हमें जब मंथ में चीज मिलता है तो मंथ को ईयर में डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी गड़बड़, आएगा ही नहीं सही आंसर. तो इसीलिए जब भी हम डिवाइड करते हैं, अगर हम थोड़ा सा मैथ्स को रिकॉल करें तो जब भी हम डिवाइड करते हैं एक ही चीज को तो डिवाइड करते हैं कन्वर्ट करके. ठीक है, तो ये मंथ्स में है तो ये भी मंथ्स में होगा. तो 54 है इंटू ये 25 है. यहाँ पे गलत लिखा है शायद, कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा. 25 है. ठीक है, ओके. इंटरप्रिटेशन क्या है? DQ इज 25. वी हैव टू चेक कि किस रेंज में आ रहे हैं. ठीक, अब हमारे बच्चे का व्हाट वी हैव गॉट 25 कम्स अंडर दिस सीवियर कैटेगरी. ठीक है, एंड दिस रेंज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू VSMS स्केल. स्लाइटली डिफरेंस है माइल्ड टू मॉडरेट में. ठीक है, ओके. Thanks for patient listening. Do you have any query regarding this test? अच्छे से समझ आ गया? कहीं भी any query, कोई भी confusion है, you can ask.